بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میری عمر صرف 1 سال تھی جب تقدیر نے ماں کی گود کی گرمی سے محروم کر دیا۔ تب دادی نے مجھے اپنی شفقت بھری آغوش میں چھپا لیا۔ ابو نے سوتیلی ماں کے روایتی سلوک کے پیش نظر دوسری شادی نہیں کی اور دادی کے بعد میری چھوٹی بہن زوبیہ نے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ جب زوبیہ باجی کی شادی ہو گئی تو ان کی جگہ فاریہ آپی نے لے لی۔ ابو جان اس بات کے قائل تھے کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اچھا ہے۔ فاریہ ابھی میٹرک میں تھیں کہ ان کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھیں لیکن انہوں نے بیٹی کی مرضی کی پرواہ نہیں کی اور رشتہ طے کر دیا۔ جس دن نکاح تھا اس روز میں نے آپی کی نگاہوں میں نمی دیکھی۔ میں سمجھی کہ وہ ہماری جدائی کے خیال سے افسردہ ہیں۔ ہمیں شروع دن سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ لڑکی کے منہ میں زبان چپ رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملوں میں لڑکیوں کو بولنے کا حق قطعی نہیں تھا۔ فاریہ آپی اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہتی تھیں مگر انہوں نے بابا جان کا احترام کیا اور ان کے لفظ کی حرمت کو سلامت رکھا، اپنے جذبات کو والد کی عزت پر قربان کر دیا۔ تاہم وہ خود پر جبر کا یہ صدمہ جھیل نہ سکیں۔ آگے پڑھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تو انہوں نے یہ بات دل پر لے لی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، چپ چپ رہنے لگیں۔ میں نے اس دوران ان کو کثرت سے عبادت کرتے دیکھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور گر گڑاتیں اور پھر شب بھر روتی رہتیں۔ باجی کی شادی کو 15 دن رہ گئے تھے۔ ابھی کارڈ چھپنے کو نہیں گئے تھے کہ والد صاحب کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ خدا کے کرم سے زندگی بچ گئی لیکن کافی دن ہسپتال میں رہے۔ اس حادثے کی وجہ سے آپی کی شادی رک گئی اور شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی۔ ابھی ابو مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے کہ آپی کو بھی بخار نے آ لیا۔ اب ان کے صحت یاب ہونے کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس دوران میرے ہونے والے دولہا بھائی کئی بار آئے۔ وہ دکھنے میں اچھے انسان لگتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اپنی آپی کی قسمت پر رقص کیا کرتی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پوسٹ پر بھی تھے۔ امید تھی کہ معمولی بخار ہے، آپی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ دن بدن لاغر ہوتی گئیں اور ان کی بیماری طول پکڑنے لگی۔ اب تو ابو کو فکر لاحق ہو گئی۔ کافی علاج کروایا، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کوئی بھی بیماری کا سراغ نہیں لگا سکا۔ آخر ایک دن ان کی بیماری کا انت ہو گیا اور یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ان کو دلہن بنانے کے ارمان بابا کے دل میں ہی رہ گئے۔ ہمارے لیے یہ ایک صدمہ اور رفیق کے لیے ایک سانحہ تھا۔ ان کو دھچکا لگا کیونکہ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھ چکے تھے ان سے اب تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ رفیق بھائی کو ہم سے اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا کہ وہ ہم سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپی کی وفات کے بعد بھی وہ اکثر ہمارے گھر آتے جاتے۔ انہیں اداس دیکھتی تو دعا کرتی کہ خدا کرے ان کو ان کی خوشیاں جلد مل جائیں۔ سچ ہے، کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو نے سوچنے کو کچھ وقت مانگا کہ ایک اچھے رشتے کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ کچھ دنوں بعد یہ لوگ دوبارہ آئے۔ تب ابو نے کہا، میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے بہو گھر لانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر امارا چلی گئی تو میرا گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے شرط مان لی اور کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں، بے شک آپ بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں تاریخ لینے آئیں گے۔ ادھر میرا بھائی ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا۔ میں رفیق کو بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی، لہٰذا اب ان سے شادی کے خیال سے پریشان تھی اور الجھن میں پڑ جاتی تھی۔ تاہم ابو کے سامنے بولنے کی جرأت مجھ میں بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے لگا، یہاں تک کہ 3 سال ہو گئے۔ رفیق کے والدین نے ابو سے درخواست کی کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے، اس طرح ہم ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے۔ والد صاحب نے بھی ان کی بات کو معقول جانا اور میرا نکاح رفیق سے کر دیا۔
अब मैं उस शख्स के साथ निकाह के बंधन में बंध चुकी थी जिसे मैं पहले होने वाले बहनोई की नज़र से देखा करती थी। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करती कि अब रफ़ीक मेरा जीवन साथी होगा। उलझनों से उलझने से क्या हासिल। मेरा भाई बहुत लायक साबित हुआ। तालीम मुकम्मल करने पर उसे बैरून मुल्क पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया। वालिद साहब को ख्याल आया कि रफ़ीक के वालिदैन इंतहाई दर्जे के शरीफ लोग हैं। उन्होंने कमाल सब्र का मुजाहरा किया। सोचा अगर हामिद पढ़ने जा रहा है तो ना जाने कब वापस आए। मनकूहा बेटी को अरसा दराज तक बिठाए रखना दुरुस्त नहीं, अब रुखसती कर देनी चाहिए। अबू ने इन लोगों को बुलाकर रुखसती की तारीख दे दी और आखिरकार में दुल्हन बनकर रफ़ीक के घर आ गई। दिल धड़क रहा था कि न जाने दिल रफ़ीक को कैसे कबूल करेगा, मगर ये मरहला भी उनके मोहब्बत भरे सलूक से तय हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मेरे जहन में मरहुमा बहन की जो शुबा छुप गई थी उसे मैंने हकीकत में चादर से ढांप दिया और अपने शौहर के हमरा खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारने लगी। हमारी ये सरशारी और वालेहाना प्यार सास ससुर को पसंद नहीं आया। वो हर वक्त रफ़ीक को कहते थे, बेटा औरत ज़ात बेएतबार होती है, इस पर ज़्यादा खुद को वारने की ज़रूरत नहीं, पाँव की जूती सर पर नहीं पाँव में ही सही रहती है। इन्हीं दिनों रफ़ीक का तबादला दूसरे शहर हो गया। वो मुझे दिलासा देकर गए कि रिहाइश का बंदोबस्त होते ही मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। यहाँ मेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता था और ना ही उनका मेरे बिना दिल लगता था। वो कुछ दिनों बाद रिहाइश का इंतज़ाम करके लौट आए। सास ससुर के मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ लेकर आ गए। यहाँ आकर हमारे रात दिन गुलो गुलजार हो गए। खुशियों की ऐसी बरसात मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी। 2 साल हमने गोया जन्नत में गुजार लिए। इस दौरान हम सास ससुर के पास भी जाते रहे। मैं हर बार उनसे कहती कि अंकल आप ही हमारे साथ आकर रहिए, मगर आंटी और वो नहीं आते थे। जब ससुराल जाती सास कहती, शादी को इतने साल हो गए अभी तक औलाद नहीं हुई। खुदा जाने क्यों हमने उसी घर से दोबारा रिश्ता ले लिया। एक मर गई और दूसरी 5 मिली। अब वो बात पे बात मेरे शौहर को भड़काने लगी कि साल 2 साल और देखेंगे, अगर बच्चा न हुआ तो तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। मेरे खाविंद अपनी वालिदा की इस धमकी को संजीदा नहीं लेते थे। कहते थे, अम्मा औलाद अल्लाह की देन है, आखिर कभी तो अल्लाह हमारी सुनेगा। मायूसी कुफर है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं डरती थी कहीं रफ़ीक अपनी वालदा की बातों में आकर दूसरी शादी न कर लें। मैं जब मैके जाती अपना इलाज भी करवाती, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी कि मेरी गोद हरी ना हो सकी। एक दिन शौहर ने कहा कि मारिया अब वालिदैन से मिलने भी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लोग मुझे दूसरी शादी पर मजबूर करते हैं। जब मैं इनकार करता हूँ तो नाराज़ी होती है। ये सुनकर मैं रोने लगी। कहा, वालिदैन के दबाव में आकर मुझे छोड़ न देना। बोले, कैसी बातें करती हो, ऐसा सोचना भी नहीं। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? अपनी ज़िंदगी को भी भला कोई छोड़ता है? दिल की धड़कनें क्या दिल से जुदा हो सकती हैं? तुम आइंदा ये बात कभी जहन में न लाना। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी करना होती तो मैं तुम्हारे साथ 6 साल क्यों गुजारता। ये रफ़ीक की तसल्ली थी जिससे मैं मायूस नहीं हुई बल्कि पुरउम्मीद हो गई। शुक्र करती कि मेरा शौहर मेरे साथ मुखलिस है। मेरी माँ तो बचपन में वफ़ात पा गई थी, लिहाजा समझती थी कि सास भी माँ होती है, उनसे माँ का प्यार मिलेगा और मैं उन्हें बेटी जैसा प्यार दूंगी। मगर ये ख्वाब ख्वाब ही रहा और इसकी ताबीर लिए मैं हाथ मलती रह गई। जब हामिद तालीम मुकम्मल करके लौटा, अब्बू ने ख़त लिखा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी की तारीख रख रहा हूँ, तुम आ जाओ, फिर शादी की तैयारियाँ करेंगे। मैंने ख़त रफ़ीक को दिया। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम जब कहोगी मैं पहुँचा दूँगी। इन्हीं दिनों मुद्दत बाद सास ससुर हमारे घर आए। वो पहली दफ़ा आए थे। मैं खुश हो गई। मैंने दिल से उनकी खातिर मदारत की, मगर सास मेरे भाई की शादी से नाखुश थीं। कहने लगीं, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे घर आएगा, यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। मेरे शौहर को भी ससुर साहब ने खूब सुनाई कि क्या तुम्हें अपनी बहन की फ़िक्र नहीं, अब तुम बीवी को लिए बैठे रहो, इसे मैके पहुँचाना चाहिए,
जिस घर में हमारी बेटी नहीं जा सकी, इस घर में भी उसकी बेटी नहीं रह सकती। मैंने रफ़ीक से कहा, आपके और मेरे दरमियान तो तकल्लुफ़ वाली बात न थी, आप ही बता देते तो मैं अब्बू से बात कर लेती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। बोले, इस किस्से को छोड़ो, मैं तुमसे क्यों दरख्वास्त करता? क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन नज़र नहीं आई? तुम खुद उसकी फ़िक्र कर सकती थी। खैर, उनकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। भाई की शादी की खुशी खाक में मिल गई। मुझे अफसरदा देखकर रफ़ीक बोले, तैयारी करो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के घर छोड़ाऊँ। उनका फ़ोन दफ्तर में आया था, वो शिद्दत से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। मैंने कहा, आपके अम्मी अब्बू इतने अरसे बाद आए हैं, उनकी खातिर तवाज़ा कौन करेगा? ससुर साहब ने ये सुना तो बोले, नहीं बेटा तुम जाओ, कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है, हम कोई गैर नहीं, मेहमान नहीं, अपने घर में आए हुए हैं। बेटे से कहा, जाकर बहू को उसके वालिद के घर छोड़ाओ। उन्होंने बात कुछ इस अंदाज से कही कि मुझे लगा वो दिल से कह रहे हैं। फिर भी रफ़ीक से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इन्हें छोड़कर जाऊं। कहने लगे, अरे भाई, वो खुशी से इजाज़त दे रहे हैं। यूँ मैं मैके आ गई। शादी के कार्ड छप गए और अब्बू ने कहा कि बेटी, अब तुम खुद जाकर सास ससुर को दो ताकि उन्हें इज़्ज़त महसूस हो। जब मैं कार्ड देने गई तो घर में अजीब मंजर था। वहाँ एक उम्र रसीदा और 2 अधेड़ उम्र औरतें आई हुई थीं। वो आपस में बातें कर रही थीं कि लड़की अनपढ़ है तो क्या हुआ, अच्छा घर है, खुश रहेगी। मैं समझी मेरे नंद के रिश्ते की बात कर रही हैं। मैंने कुरेदना मुनासिब न समझा, मगर रफ़ीक का अंदाज़ बदला हुआ था, मेरी तरफ देखते हुए जैसे आंखें उनका साथ नहीं दे रही थीं। मैंने कहा, मुझे बाज़ार ले चले, मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है। जवाब दिया, देवर को साथ ले जाओ, मुझे किसी काम से जाना है, ख़रीदारी जो करनी है कर लेना, फिर शफ़ीक ही तुम्हें तुम्हारे मैके पहुंचा देगा। भाई की शादी से 4 रोज़ कबल रफ़ीक लौट आए। बोले, मेरे दोस्त की शादी है, उसे सोने के सेट की ज़रूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा। तुम्हारे पास तो 3-4 सेट हैं, तुम कोई भी पहन लेना। जब रफ़ीक चले गए तो न जाने क्यों मैं बार बार परेशान होती, जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। सोचा वो सेट ले गए हैं, शायद इस वजह से जहन ऐसा हो रहा है। हालांकि मैं तंग दिल नहीं थी, मैं रफ़ीक पर अंधा एतमाद करती थी, इसीलिए मेरे जहन में कोई दूसरी बात नहीं आ रही थी। भाई की शादी में मसरूफ़ हो गई। अगले रोज़ वालिद साहब को किसी ने बताया कि तुम्हारे छोटे दामाद ने दूसरी शादी कर ली। वो बोले, तुम ऐसे ही बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उस शख्स ने कसम खाई तो वालिद परेशान हो गए। ताहम उन्होंने सोचा मेरे घर में पहली बार खुशियों की बारात आई है और वो इकलौते बेटे की शादी है। रफ़ीक के घर जाकर तस्दीक करूँगा तो रंग में भंग पड़ जाएगा। बेहतर है कि शादी हो जाए, फिर इस खबर की तस्दीक करूँगा। मुझसे भी ये बात छुपाई गई। मैं जो खुश खुश फिर रही थी कि कहीं मुरझा कर गिर न पड़ूँ। अगले रोज़ रस्म हिना थी। उन्होंने मेरी खुशियों को गारत करना मुनासिब न समझा। रस्म हिना में जठानी और मेरे जेठ आ गए। बोले कि रफ़ीक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आया। हफ्ता भर इंतज़ार किया, वो ना आए तो मैंने वालिद से कहा, आप मेरे घर मुझे पहुंचाइए। अबू ने जवाब दिया, सब्र करो, वो घर आकर तुम्हें ले जाएगा। जब बहुत इसरार किया तो भाई ने कहा, नादान, हौसले से सुनो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने घर वालों से छुपकर अपने शौहर को फ़ोन किया। उन्हें बताया कि भाई ने मुझे ये बात कही है, मगर मुझे यकीन नहीं आता। कहने लगे, हाँ ये बात दुरुस्त है, अम्मी अब्बू ने ज़बरदस्ती शादी कराई है, मगर मैं उसे थोड़े दिनों बाद तलाक दे दूँगा। तुम किसी बात को दिल पर ना लो, मैं जल्दी आकर तुम्हें ले जाऊँगा। वालिद साहब ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो, सौतन कबूल है या तलाक लेना चाहती हो? मैंने जवाब दिया, ना तो सौतन कबूल है, ना ही तलाक लेना चाहती हूँ। इस सूरत में घर वापस जाऊँगी अगर रफ़ीक दूसरी बीवी को सास ससुर के पास रखें और मुझे अपने पास। रफ़ीक ने ये शर्त मान ली। नई बीवी को वालिदैन के पास छोड़कर मुझे साथ ले गए। चंद दिन साथ रहे, फिर वालिदैन के घर गए तो 4 दिन बाद लौटे। कुछ दिनों बाद दोबारा उसी शहर में तबादला करवा दिया जहाँ उनके वालिदैन थे। अब वो 4 दिन वहाँ, 3 दिन मेरे पास होते। जब दूसरी बीवी के पास होते, इधर घर में मैं अकेली दिन रात गुजारती। अब वो अकेले मेरे नहीं रहे थे। ये एहसास मेरी नींदें हराम कर देता। अब्बू बीमार थे, मुझे मैके जाना पड़ा। रफ़ीक बोले, चंद दिन बाद आकर ले जाऊँगा, मगर वो लेने ना आए। मैं इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि 1 साल बीत गया।
وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے، ان کی فیملی مکمل ہو گئی اور اس خوشی میں وہ مجھے بھول گئے، مجھ سے لا تعلق ہو گئے، مگر میں انہیں نہیں بھولی۔ میں اپنے والد کے گھر پر تنہا رہتی ہوں، بھائی اور بھابھی بیرون ملک چلے گئے ہیں، بڑی بہن اپنے گھر میں خوش ہے۔ میں آج بھی اس فریب میں زندہ ہوں کہ میرا شوہر مجھے لینے آئے گا، حالانکہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ رفیق کی آس چھوڑ دو، اس کے 4 بچے جوان ہیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو ابھی بھی شوہر کی محبت میں گرفتار ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔